Hello everyone, how are you all? So in today videos we are going to start with the new session, and here today I am going to give you a revision of all three methods. In my previous three video I taught you value added method, expenditure method followed by income method. So now I just want to give you a brief of all the three methods together and how they are related to national income. So let's start with the first method here. You can see the flow chart, the whole chart here. But before we start with the chart, I want to give you one more information. Who calculate national income in our country? In our country, national income is calculated by which organization? That is Central Statistical Organization, right? While all social issues related information data are collected by NSSO and population related data are collected by Registrar General of India. But national income, GDP, NNP is calculated through CSO, Central Statistical Organization of India. So that I have marked here. You can just note down it from here. So now we are going for revision of three methods all together. Our first method was value added method. That we have done already. Value added method. In value added method, what was the formula? Sales plus change in stock minus intermediate cost. What was the formula? Sales plus change in stock minus intermediate cost. And I taught you sales can be computed as selling, sales which is for self consumption, also for selling in the market. It will be including with change in stock if entire output is not sold in the market. Something remain with us, unsold, undesired stock remain with us, that will be counted as change in stock, right? So here we have. अब इसी का एक alternative formula है which I have written here as OR. That is domestic sales plus export. Domestic sales means sale which is done at domestic level or selling from one firm to another firm. When we are selling from one firm to another firm, it means we are selling at domestic level, in which we have to add on exports also. Then only our complete sale will be there. Then we will plus change in stock if it is given there in the question, right? So domestic sales plus exports plus change in stock minus purchase of raw material. I told you earlier as well, purchase of raw material, intermediate good, intermediate consumption, all are same. They can be used interchangeably according to given questions. But if intermediate cost and purchase of raw material, or if you are given with purchase of machinery, so always remember, if you are given with purchase of raw material and purchase of machinery, you will use only purchase of raw material. Why? Because machinery is capital good. It will be used for more than one financial year. So for this reason we cannot use that. This is capital good, and intermediate good says non-factor input. Non-factor input यानी कि जो factors नहीं है. For this reason the purchase of machinery will not be considered here. It will be taken as capital good which will be used again and again and again in more production of the firm. So here domestic sales plus export plus change in stock minus purchase of raw material, right? One more formula was there in the alternative use of our value added method. In our country there are three sectors. So all the three sectors combinedly producing, combinedly selling in the market, and all together are working for value addition. Like in my previous video I taught you how value is added. When a farmer is producing sugarcane, who will purchase from farmer? If sugarcane sold by farmer is of 100 rupees, what will be done by sugar mill? Sugar mill will purchase from farmers at sugarcane at 100 rupees. That will add some value 50 rupees and the market value become 150. फिर वही sugar will be for wholesaler become cost, intermediate cost. तो wholesaler को कितने में पड़ी? 150 में.
150 में उसने ली किससे, शुगर मिल से, होलसेलर ने उसमें अपनी वैल्यू ऐड करी 50 रुपीज, तो फाइनल कॉस्ट कितनी हो गई 200। अब वो 200 रिटेलर्स पे जाएगी, रिटेलर्स उसमें अपनी वैल्यू ऐड करेगा, तो वो गुड कितने की बन गई 250 की। तो इस तरह से वैल्यू ऐड होती चली गई। बट रिमेम्बर, और हम हर बार जब हम सिर्फ फार्मर की बात कर रहे हैं तो उसने जो वैल्यू ऐड करी, उसने सीधे रॉ मटेरियल बेचा, जैसी शुगर मिल ने उसकी वैल्यू ऐड करी तो उसने इंटरमीडिएट कॉस्ट हटाई, तो उसने वैल्यू कितने की ऐड करी 50 रुपीज। फिर जब होलसेलर ने ली तो उसने इंटरमीडिएट कॉस्ट हटाई एस 150 रुपीज, क्योंकि उसने कितनी वैल्यू ऐड करी थी 50, 200 में करी ना होलसेलर ने, राइट। फिर हम आगे बढ़े, गोइंग टू रिटेलर। रिटेलर ने 200 में खरीदी, 250 में बेची, तो 200 उसने हटा दी, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी 50 रुपए। इस तरह से वैल्यू ऐड जो होती है हर सेक्टर में होती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थर्ड ऑप्शनल फॉर्मूला इट इज यूज्ड हियर फॉर वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज GVA MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVA MP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शरी सेक्टर। इन तीनों का टोटल करके या इसका टोटल करके या इसका टोटल करके हमें क्या मिलता है GDP MP। क्या मिलता है GDP MP। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट मेथड। अब GDP MP से NNPFC आना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम। ये 3 मेथड किसके लिए यूज हो रहे हैं, अल्टीमेटली फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम मीन्स NNPFC, राइट। तो अब मुझे GDP MP से NNPFC पर आना है, किसका यूज होगा 3 डायमंड रूल। तो क्या क्या यूज होंगे, माइनस डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट, माइनस NIT MP से FC, डोमेस्टिक से नेशनल, प्लस NFIA। इन तीनों को यूज किया, हमें क्या मिल गया NNPFC। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनकम मेथड। नाउ कमिंग टू इनकम मेथड, वी नो, yes, in my previous video I taught you about income method. So in income method we have first component as COE, compensation of employees, right? Compensation of employee. तो employee कौन है, लेबर। तो पहला फैक्टर क्या है, लेबर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस, लेबर के अलावा प्रोडक्शन ऑपरेशन में और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनको दिए जाने वाला पेमेंट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। देन लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आई टॉट यू एज those who are earning at a small level, those who are working and running their private occupations, self-employed, their employment will also be counted as mixed income of self-employed. For that I have given you the example, small retailers, small shopkeepers, farmers, barbers, teachers teaching at tuitions, and doctors running their private clinic, right? So in this way, now we are just ओपनिंग ऑल दी कॉम्पोनेंट्स। तो हमारा जो फॉर्मूला मेन है वो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। इसकी पूरी डिटेल समझने के लिए आप मेरी वीडियो को फॉलो अप करिए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो हियर रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट। फिर लास्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। या तो हम इन तीनों को, अगर ये 3 दिए हैं तो यही ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर ये 3 नहीं दिए तो इस तरह से हमें गिवन होंगे क्वेश्चंस में, वेजेस एंड सैलरी गिवन हो सकता है, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो हमें इन सबको प्लस करते जाना है, राइट। ये हमें प्लस करते जाना है सो दैट वी कैन गेट आवर NDPFC, क्योंकि इनकम मेथड से क्या मिलता है हमें NDPFC। सो वील रीच टू NDPFC। नाउ मूविंग टू NNPFC, क्योंकि इनकम मेथड से भी हमें कहाँ पहुंचना है, नेशनल इनकम, राइट। तो NDPFC टू NNPFC सिर्फ वन चेंज वी हैव, नेट टू नेट इज सेम, FC सेम, ओनली डोमेस्टिक टू नेशनल। सो डोमेस्टिक टू नेशनल मीन्स प्लस NFIA, करेक्ट। मूविंग टू दी लास्ट मेथड, दैट इज expenditure method. In expenditure method we are calculating final expenditure. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, फाइनल एक्सपेंडिचर। सो फॉर फाइनल एक्सपेंडिचर वी हैव गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं, 2, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन,
फिक्स्ड आ गया प्लस चेंज इन स्टॉक, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. So change in stock is also known as inventory investment. So here gross domestic fixed capital formation plus change in stock will be known as gross domestic capital formation plus net export. Net export कैसे मिलता है? Exports minus import. From adding all these four component, government final, private, gross domestic plus net export, इन चारों को प्लस करके हमें क्या मिला? GDP-MP. What we get? GDP-MP. So वापस GDP-MP से NNPFC आने का जर्नी, GDP-MP से NNPFC आने की जर्नी में फिर से 3 रूल्स, 3 स्टेशंस, दैट इज माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFI. तो ये रिवीजन हो गया फॉर्मूले का. मैंने इसलिए कंबाइंड चार्ट बना दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. आप जल्दी से इस पूरे चार्ट को ड्रॉ कर लो अपने पास, फिर आपको हमेशा याद रहेगा, कंपैरेटिव बना रहेगा और कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर मैं इसकी कैलकुलेशन करवाती हूँ. So you all have drawn that chart. That chart will definitely help you in understanding all 3 methods together. Now the fact is, by using all 3 methods like which I have shown you already in the chart, from value added, from expenditure method we get GDP-MP, converting to NNPFC we have the value of national income. Income method derived for NDPFC, कन्वर्टिंग इनटू NNPFC. उस चार्ट में अगर आपने ध्यान दिया तीनों मेथड एक ही जगह आके मिले, यानी नेशनल इनकम. इसका मतलब ये है कि तीनों मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू हमेशा सेम आती है, राइट? अब इसी बात को हम प्रूव करेंगे विद आर दिस गिवन न्यूमेरिकल कि तीनों मेथड को यूज करके किस तरह से हमारे आंसर एक ही आता है. सॉल्व इट. सो आवर फर्स्ट मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड. According to value added method, first we have to find out the options. तो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पर value of output of primary sector. I have very small board in this lockdown. यही arrangement हुआ है and economy says the same thing. With limited resources, I am trying to filling unlimited wants, right? So scarcity of resources we have here. उसी को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ. मेरा बोर्ड छोटा है, न्यूमेरिकल मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, हर एक के पूरे नाम नहीं लिखे हैं, मैंने शॉर्ट में नाम लिखे हैं. सबके बारे में मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. तो अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे. तो क्या लिखा है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया है? 1600. फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. और हमारा फॉर्मूला क्या है? GVMP का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट? तो हमें अब हर सेक्टर की फॉर्मूले में लिखा था ना GVMP ऑफ PS प्राइमरी सेक्टर मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ टर्शरी. तो इस तरह से हम इसको प्लस करेंगे. सो वी आर फर्स्ट यूजिंग वैल्यू added method. Accordingly, GVA-MP is GVA-MP of primary sector plus GVA-MP of secondary sector plus GVA-MP of tertiary sector. तो बस अब हमें इसको फॉर्मूले में रखना है. तो क्या करेंगे हम? GVA-MP कितना है? फर्स्ट 1600 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ दिस 500 प्लस सेकेंडरी सेक्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 1320 माइनस वैल्यू इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 200 प्लस टर्शरी सेक्टर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर 1500 वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर 600. So all together when we solve, what we will get? We will get 3120 as GDP-MP, राइट? अब हमें क्या करना है? NNPFC कैलकुलेट करना है. तो NNPFC कैलकुलेट करें इस फंक्शन में हम. तो NNPFC के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 100
प्लस NFIA given as -20 माइनस NIT सो -400। अब इस पूरे को सॉल्व करें तो क्या ये 500 माइनस 3100 कितना हो गया हमारा, दैट विल बी 2620 प्लस माइनस ओपन हो जाएंगे -20, योर रिजल्ट विल बी 2600 एज नेशनल इनकम। क्या निकल के आया ये, नेशनल इनकम। अब इसी क्वेश्चन को हम सेम किससे सॉल्व करेंगे, यूजिंग इनकम मेथड, राइट। तो अब चल रहा है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकम मेथड से मिलता क्या है, NDPFC इक्वल्स टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। ये हमने लिख लिया पहले फॉर्मूला। तो हमेशा पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद ही हमें आगे चलना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, हर जगह पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है। अब क्या है हमारा COE गिवन है यहाँ पे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना गिवन है 1900। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट दिया है पर हमें, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस टर्म ही दे दिया। तो रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट कुछ भी दिया हो और साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस का टर्म दिया हो तो हमें सिर्फ क्या यूज करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये कितना है ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा, +720। अब वन मोर थिंग, मिक्स्ड इनकम। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स्ड इनकम नहीं है। तो मिक्स्ड इनकम जब नहीं है तो हम उसको अज्यूम करेंगे 0। फॉर्मूला पूरा लिखना है। अगर कोई वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे 0 से, यानी हम उसको अज्यूम करेंगे 0। लेकिन फॉर्मूले में कंप्लीट हमें सब कुछ दिखाना होता है, राइट। तो ये हो गया। अब इससे हमें क्या मिल गया, 2620। अब NDPFC आ गए हम वापस वहीं पे। NDPFC से हमें कहाँ पहुंचना है, नेशनल इनकम। तो क्या करें, माइनस प्लस के, क्योंकि ये NDPFC है ना, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, यानी कि प्लस NFIA, और NFIA कितना है हमारा, -20, राइट। तो माइनस किया तो कितना रिजल्ट आ गया हमारे पास, 2600 आ गया सेम, नेशनल इनकम आ गया सेम, करेक्ट। अब हमारा थर्ड मेथड क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड। सो थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड क्या है फॉर्मूला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हमें मिलता क्या है, हम सबको पता है कि इस फॉर्मूले से हमें मिलता है GDPMP। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, GDPMP। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 2000। फिर है गवर्नमेंट, ढूंढे ये मिला, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, कितना है 600 प्लस नेट डोमेस्टिक, हमें क्या दिया है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। पूरा नाम नहीं लिखा है पर आपको समझ में आ जाएगा, एज आई सेड फॉर्मेशन में लिख देती हूँ तो क्लियर रहेगा कि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, चाहे नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो चाहे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो, डोमेस्टिक टर्म नहीं भी लगा है लेकिन वो अंडरस्टूड है कि हम क्या ले रहे हैं, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि यहाँ पे नेट लगा है, बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या लगा है, नेट। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम नेट लेके ही सॉल्व कर लें, तो ये जो हमारा GDP है वो NDPMP में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम नेट लेते हैं तो ये नेट के कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेट लेने का मतलब है डेप्रिसिएशन नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि हम एज इट इज GDP ही कैलकुलेट करते हैं, बट क्या करेंगे कि जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट है ना, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम नेट में क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। सो सिंपली व्हाट वी विल डू, 400 प्लस डेप्रिसिएशन, ये तरीका है। और दूसरा तरीका बता ही दिया मैंने, अगर आप सीधे ये ले रहे हो, डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे हो, तो इसको हटा के हम नेट कर देंगे, यानी कि हमारा कंपोनेंट बन जाएगा NDPMP, राइट। एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज गिवन टू यू एज 20। इन सबको अब हम एड ऑन कर लें तो क्या बनेगा, ये हमारा 2600 प्लस 500 3100 इक्वल्स टू 30। वापस से कहाँ आ गए हम, वही अपने 3 डायमंड रूल की तरफ। तो क्या करें, माइनस डेप्रिसिएशन
माइनस NIT एंड प्लस NFIA जो किसमें गिवन है, माइनस में। तो क्या रिजल्ट आ गया, 2600 एज नेशनल इनकम। तो आपको देखिए हमारा नेशनल इनकम यहाँ पे आ गया यूजिंग ऑल थ्री मेथड, दैट इज 2600 by expenditure method, 2600 by income method and 2600 by value added method। तो हमने तीनों मेथड्स को अप्लाई करके क्या जस्टिफाई किया कि नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एनी मेथड, ऑल द मेथड रिमेन गिव अस सेम आंसर। रीजन इज सर्कुलर फ्लो में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, what is distributed is spent on consumption of goods and services. So what is production is distribution, distribution is same equals to expenditure or consumption। इसलिए नेशनल इनकम भी इन तीनों मेथड से सेम ही आएगी। सेम इज डन फॉर ऑल रिलेटेड एग्रीगेट। अगर इन तीनों मेथड से हम GNP/FC निकालें तो वो भी सेम आएगा यूजिंग थ्री मेथड। तो हमेशा याद रखना एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आपसे पूछा जाए कैलकुलेट GNP/FC यूजिंग इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, सिंपल वे ऑफ चेकिंग योर आंसर इज कि दोनों मेथड से आपका आंसर सेम होना चाहिए। तो क्लियर हो जाएगा कि आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है। तो अब इस क्वेश्चन को पूरे को अच्छे से लिख लें आप लोग, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तीनों मेथड जितनी स्पेस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। लॉकडाउन एक बार खत्म हो गया तो मैं एक बड़ा बोर्ड भी ले आऊंगी और अच्छे से समझा दूंगी। तो जस्ट राइट डाउन। So everyone, have you written that question? Have you done that question? Now for your homework, I am giving you one more question which you will solve. I have given here answer for the same question so that you can also solve and can cross check whether your answer is correct and not correct. Question is calculate NNP/FC national income and GNP/MP gross national product at market price by all three method। बिल्कुल क्लियर लिखा है मैंने, तीनों मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, तीनों मेथड से इसको कैलकुलेट करना है, राइट। तीनों मेथड का यूज करने के लिए सारे कंपोनेंट यहाँ लिखे हैं, रुपीज इन करोड़, और इस तरह से ये आंसर आएगा। और हमेशा याद रखना जब भी आंसर लिखो तो इसके आगे ये लिखना मत भूलना, क्योंकि इकोनॉमिक डीलिंग सब इसी में होती है। आंसर आपका आ रहा है NNP/FC 1740, GNP/MP 1870। तो ये आप क्रॉस चेक कर लेना, तीनों मेथड के यूज करने से सेम आंसर ही आना चाहिए। इट मीन्स यू आर डूइंग योर वर्क इन करेक्ट वे, राइट। सो यू जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, इफ यू हैव नॉट रिटन दैट क्वेश्चन नो प्रॉब्लम, आप अपनी वीडियो को पॉज करिए और फिर इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेकर के जो बोर्ड में पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज different type of questions frames are there, different type of concepts are there through which we can calculate our national income. So that's all for today's video. Bye bye, good night.